Hello everybody, here is your EVS subject teacher Dharmendra Sir. Welcome back to my YouTube channel Achievers Academy once again. Here students, I will begin the chapter number 16. Previously I have sent all the videos of about chapter number 14. 3 part I have already sent. You must be watch this video and get more facility. Here students, in this chapter, before I proceed this chapter, I discuss about some difficult words. Here is first scene. What is the meaning of scene? View. And also you can write down look. View, देखना, look, that means देखना, scene is here the words your, and imagine. What is the meaning of imagine? You can write down think. And also you can write down dream up. Okay. Community. What is the meaning of community? Society. समुदाय जिसको कहते हैं. And here is various. What is the meaning of various? Different. And basket. What is the meaning of basket? You must be write down here. Punnet. In Hindi medium, टोकरी. Okay students, see, view and look, imagine, think, dream up, community, society, various, different, basket, punnet. Okay students, here let's see another difficult words. Compost. You can write down mixture. Also in Hindi meaning mixed खाद. मिश्र खाद कैसे बनता है? गार्बेज या अलग अलग प्रकार के जो वो गार्बेज होते हैं उनको मिश्रित करने के बाद कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है. इज इट क्लियर? एंड सेवेंथ, अनटचेबल. राइट डाउन इंटेंजिबल. इन हिंदी मीनिंग अछूत. अछूत. इंटेंजिबल, अनटचेबल, जिसको टच नहीं करने की लोग टच नहीं करना चाहते हैं. इंटेंजिबल. इन अदर वर्ड्स यू मस्ट बी राइट डाउन इंटेंजिबल. इंटायर. लेट्स हियर इंटायर. सी इंटायर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटायर? होल, संपूर्ण. ओके. एंड हियर इज सिचुएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिचुएशन? कंडीशन. Situation, or you can write down here condition, परिस्थिति. Constitution. What is the meaning of constitution? You must be write down संविधान. Constitution. Is it clear? Let's see another. Once again, what is the meaning of seeing? View, look, imagine, that means think, ड्रीम अप. कम्युनिटी, सोसाइटी, समुदाय. कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? सोसाइटी को भी कम्युनिटी कहा जाता है और कम्युनिटी को भी सोसाइटी कहा जा सकता है. देन हियर यू अंडरस्टूड अबाउट दिस. एक समुदाय को कम्युनिटी बोला जाता है. वेरियस, डिफरेंट. बास्केट, पनेट, टोकरी. ओके. कंपोस्ट, मिक्सचर या मिश्र खाद. कंपोस्ट को क्या बोला जाता है? मिश्र खाद. जो मिश्रित खाद होते हैं, जो गार्बेज या रबिश इस तरह के कूड़े करकट से जो है जो खाद बन के तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंपोस्ट खाद या कंपोस्ट बोलते हैं. अनटचेबल, इंटेंजिबल, अछूत, इंटायर, होल, सिचुएशन, कंडीशन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान. These 10 difficult words I find out you can get some difficulties, so I write down here, and I just hope you must be understood when you just read your chapter. Then these difficult words you can see there, and you must be get more understanding level. So just learn this difficult words, all the students. Okay,
and after this I must be start some another aspects of this chapter. Students, let's see here the exercise question answer in this chapter. Firstly, if you were asked to do any 5 jobs shown in this chapter, which would you choose? Can you understand? If you were asked, यदि आपसे पूछा जाए to do any 5 jobs, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स में से किसी 5 जॉब्स के बारे में आपसे पूछा जाए, ठीक है? स्टूडेंट्स, लेट्स सी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. Students, let's see exercise question answer. If you were asked to do any 5 jobs shown in this chapter, which would you choose? That Hindi meaning, if you were asked, यदि आपसे पूछा गया जाता था. If students, let's see here exercise question answer. If you were asked to do any 5 jobs shown in this chapter, which would you choose? इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स के जॉब दिखाए गए हैं, वर्क दिखाए गए हैं. उस चैप्टर से अगर आपसे पूछा जाता कि कौन से जॉब आप लेना चाहते हैं, कौन सा काम आप चूज करना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा? हियर आई वुड आल्सो विजुलाइज दिस चैप्टर. यू कैन सी इन dear students, you see here in if you seen the page number 149, then you can just see different types of jobs. Many persons are doing some different jobs. Then in this job you must be find out what will your answer, what you choose और व्हाट वी चूज. हम लोग क्या चुनेंगे, कौन से जॉब्स के बारे में चुनेंगे? यू मस्ट बी रीड एंड फाइंड आउट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब इज देयर. देन आई विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इन डिफरेंट टाइप्स के जॉब में से हम लोग कौन से जॉब को चूज करेंगे. आप लोगों को सारे जॉब्स देखने हैं कि कौन से लोग क्या काम, कितने प्रकार के जॉब्स इसमें दिए गए हैं. कोई क्या जो है स्वीपर का काम कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, तो इस तरह से कोई फ्रूट वेजिटेबल्स का हॉकर्स का काम कर रहा है, तो इस तरह से टीचर का काम कर रहा है, डॉक्टर का काम कर रहा है. तो इसमें से हम कौन से जॉब्स को चुनेंगे? इस क्वेश्चंस का मीनिंग यही निकल रहा है. इफ़ यू वर आस्क्ड टू डू, अगर आपसे पूछा जाता टू डू एनी 5 जॉब्स, सिर्फ 5 जॉब्स के बारे में पूछा जाता, एंड सेलेक्ट दिस शोन इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर में दिखाया गया है, विच वुड यू चूज, आप क्या चूज करते? देन यू मस्ट बी चूज व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब्स. हियर इज, यू कैन राइट डाउन टीचर, डॉक्टर, scientist, and also you can write down artist, and you can write down shopkeeper. These 5 jobs we will choose. हम लोग ये 5 जॉब्स, इन सब में से अगर अच्छा जॉब देखा जाए जिसको जो हम लोग चूज करेंगे, जनरली वी विल चूज हियर. टीचर का जॉब चूज कर सकते हैं, डॉक्टर का जॉब चूज कर सकते हैं, साइंटिस्ट का जॉब चूज कर सकते हैं, ओके, आर्टिस्ट का जॉब चूज कर सकते हैं, शॉपकीपर का जॉब चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो
the answer is here. If you are asked to do any 5 jobs shown in this chapter, which would you choose? Generally we will choose about teacher job, doctor, scientist, artist, shopkeeper. So I hope you must be understood. You can see different type of job in your chapters. If you just open the book, then you can see many persons is doing different type of work. Then you can visualize, and I hope we must be just choose these kind of job. So let's see another questions. Dear students, let's see another question. Question number 2. Which 5 jobs would you not choose? Why? आपने जैसे अभी when you seen in your chapter different type of work, then firstly what was the question? Which kind of jobs you will choose? कौन किस प्रकार के जॉब को आप चूज करेंगे? पहला क्वेश्चन ये था. देन व्हाट इज आवर आंसर? हम लोगों का आंसर क्या हुआ था? टीचर का जॉब हम चूज कर सकते हैं, डॉक्टर का जॉब चूज कर सकते हैं, साइंटिस्ट का जॉब चूज कर सकते हैं, आर्टिस्ट, शॉपकीपर का जॉब चूज कर सकते हैं. ये डिफरेंट 5 जॉब्स हमने चूज किए थे. एंड इन दिस क्वेश्चन यू सी हियर, क्वेश्चन इज दिस, विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज? आप 5 जॉब्स ऐसे बताइए इस चैप्टर में जो दिए गए हैं, इसमें से आप कौन से ऐसे 5 जॉब्स हैं जिसको आप चूज नहीं करना चाहेंगे? इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी. आई मस्ट बी श्योर यू विल नॉट चूज these kinds of jobs like sweeper, laborer, and fruit, vegetable, hawker, and fourth is you can write down sweeper, laborer, fruit, vegetable, hawker, and construction worker. And also you will not choose about the gatekeeper. Generally we will not choose these kind of, okay? Why? Here the answer is why. Then already your answer, or you can say our answer will this. We want to do respectful, okay, job, respectful job, and also want better earning. Here is the answer. We want to do respectful job.
जिसमें सम्मानित जॉब जिसको कहते हैं, रिस्पेक्टफुल जॉब हम लोग चाहते हैं, एंड ऑल्सो वांट बेटर अर्निंग, और अच्छी अर्निंग चाहते हैं जिसमें अच्छा पैसा हमें मिले और इज्जत भी मिले, सम्मान भी मिले, रिस्पेक्टफुल जॉब हो। इस तरह के हम जॉब को पसंद करते हैं। जनरली वी जस्ट थिंक अबाउट दिस, आवर माइंड सेट इज लाइक दिस। पहले जॉब में आपने, अब इन सारे जॉब्स को जो दिखाया गया था उस जॉब में आपने चूज क्या किया? टीचर का जॉब चूज कर सकते हैं, डॉक्टर का जॉब चूज कर सकते हैं, और साइंटिस्ट का, आर्टिस्ट का, शॉपकीपर का, ये जॉब आप चूज करते हैं। इसको आप रिस्पेक्टफुली देखते हैं, रिस्पेक्टिव जॉब्स के रूप में देखते हैं। और यहाँ पे कुछ जॉब्स ऐसे हैं जैसे स्वीपर, लेबरर, फ्रूट वेजिटेबल हाकर्स। वी वांट टू डू रिस्पेक्टफुल, इस जॉब को हम नहीं करना चाहते हैं, और इस रीजन इज दिस, वी वांट टू डू रिस्पेक्टफुल जॉब, हम रिस्पेक्टफुल जॉब करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो वांट टू बेटर अर्निंग, और अच्छी इनकम करना चाहते हैं। बट हियर स्टूडेंट्स, of these two questions we will come our topic. Mostly for these questions our mind is going to the our topic, who will do this work, कौन लोग यह कार्य करेंगे, who will do this work. Suppose that we choose this kinds of work, and here is this also we will not choose sweeper, laborer, fruit vegetable hawker, and we want to do respectful job and also want to better earning. ये जनरली कॉमन थिंकिंग मानी जाती है कि इस तरह के लोगों की सोच है, और इस तरह से लोग इसके बारे में सोचते हैं कि हमको बेटर जॉब, बेटर अर्निंग और रिस्पेक्टफुल जॉब चाहिए। इस तरह के जॉब नहीं चाहिए जिसमें हमको रेस्पेक्ट ना मिले और क्या हो, बेटर अर्निंग ना हो। तो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, देन यू कैन कम टू द अनदर एस्पेक्ट। अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग? गांधी जी, यू नो अबाउट दिस, गांधी जी और उनकी टीम, देश के जो बापू कहे जाने वाले गांधी जी, हमारे जो हम सबके सम्मानीय हैं और आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, ऐसे महापुरुष ने जब ये क्लीनिंग का काम किया, सफाई का काम किया, शुरू किया, तो देन हियर इज द क्वेश्चन रेज, व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग? गांधी जी और उनकी टीम, उनके साथ में काम करने वाले लोग, व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, सफाई का काम क्यों शुरू कर दिए? हियर इज द क्वेश्चन। देन लेट्स सी व्हाई गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, सो दैट people come out their mindset, गांधी जी ने इसलिए स्टार्ट कर दिया कि लोग अपने माइंडसेट से बाहर निकले, people, so that people come out their minds. Another thing, why did Gandhiji and his team started doing the job of cleaning? So that people come out their mindset, and he wanted people should respect
every type of job. Here students, who was गॉडफादर ऑफ आवर नेशन, जो हमारे देश के बापू कहे जाते हैं और जिनके आदर्श और त्याग और बलिदान की कहानी सब लोग जानते हैं, ऐसे महापुरुष ने क्यों गांधी जी और उनके टीम ने स्टार्टेड डूइंग द क्लीनिंग का काम शुरू किया? बिकॉज ऑफ सो दैट पीपल कम आउट देयर माइंडसेट, लोग अपने माइंडसेट से बाहर निकलें, अपनी मानसिकता से बाहर निकलें, जो उनकी सोच है उससे बाहर निकले, देयर माइंड सेट। एंड ही वांटेड, और वो ये चाहते थे, ही वांटेड, वो चाहते थे पीपल शुड, लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, पीपल शुड रिस्पेक्ट एवरी टाइप ऑफ जॉब, हर प्रकार के जॉब को का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई भी पर्सन्स किसी भी प्रकार का अगर जॉब कर रहा है तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई भी जॉब को हमें ऐसे अनरिस्पेक्टेड ढंग से नहीं देखना चाहिए, अछूत के तौर पे नहीं देखना चाहिए, या उनके रिस्पेक्ट को कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये करके दिखाया कि आई एम ऑल्सो डूइंग दिस जॉब बट माई रिस्पेक्ट इज नॉट डिग्रेडिंग बट दिस रिस्पेक्ट इज गोइंग टू अपग्रेडिंग। उनका रिस्पेक्ट कम नहीं हुआ उससे, बल्कि और बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप जॉब, किसी भी प्रकार का जॉब हो, वो रिस्पेक्टफुल ढंग से हमको देखना चाहिए और उसके बिना काम नहीं हो सकता है। हु विल डू दिस वर्क, अगर स्वीपर का काम कोई कर रहा है तो स्वीपर के बिना काम नहीं हो सकता है। हमारे कम्युनिटी में, हमारे समुदाय में लेबर का काम कर रहा है कोई, तो लेबर के बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। तो हर वर्क का इम्पोर्टेंस है और हर वर्क को हमें रिस्पेक्ट देना है। इज इट क्लियर? अभी पिछले 2 क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था कि जनरली हमने डिस्कस किया था, जनरली हम यही सोचते हैं कि हम ये जॉब चूज करेंगे, बट आप चूज कर लो, दैट्स फाइन, बट हु विल डू दिस वर्क, जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट दिस कि हाउ वी मस्ट बी रिस्पेक्ट द पर्सन्स, बिकॉज हु विल डू दिस वर्क, अगर ये काम नहीं किया जाएगा तो कौन करेगा? तो हमें ही रिस्पेक्ट देना है ऐसे लोगों को जो जॉब करते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं। या इवन यू कैन से एनी टाइप ऑफ जॉब इफ अ पर्सन इज डूइंग, then it's our moral duty, we must be give the respect and honor also. So here students, this is the last question of this video. I hope you must be understood what I want to say in this video. Firstly, you know about this, find out what kinds of job you choose and what kinds of job you don't want to choose. आप नहीं चूज करना चाहते हैं, इसके बारे में हमने जाना, और कौन से जॉब हम चूज करना चाहते हैं। एंड थर्ड इज हियर, व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड टू डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, गांधी जी और उनकी टीम ने क्यों स्टार्ट किया ऐसा काम करना शुरू किया, क्लीनिंग का काम शुरू किया, सफाई का काम शुरू किया। तो यहाँ पे आंसर है सो दैट पीपल कम आउट देयर माइंडसेट दैट मीन्स मानसिकता, सोच जिसको कहते हैं, उन्हें अपने सोच को बदलना चाहिए, सोच से बाहर आना चाहिए। और ही वांटेड, वो चाहते थे पीपल शुड रिस्पेक्ट, लोग रिस्पेक्ट करें एवरी टाइप ऑफ जॉब, हर प्रकार के जॉब का रिस्पेक्ट करें। सो आई होप you must be understood students. Watch my full video students. Thank you so much. Have a great day.